Hello students, today we are starting with geography, chapter 8. So this is our chapter. Natural resources, right? So I am reading from page number 59. Page number 59, dear students. Human needs can be satisfied partially or completely through resources. There are thousands of elements in the nature, but we cannot call all of them resources. These elements can be called resources only when they are utilized by man through special knowledge and expertise. So students, resource word किसको कहते हैं? रिसोर्स का मतलब होता है एक तो ये एलिमेंट ऑफ नेचर होना चाहिए एंड सेकेंडली इट शुड बी यूजफुल टू ह्यूमंस, तो ही ये रिसोर्स है. आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ नेचर बहुत सारे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट का मैं नाम लूंगा इसमें, जैसे कि एक एलिमेंट है नेचर में विच इज कॉल्ड क्रायोलाइट. क्रायोलाइट जो है ये एक साइंटिफिक नेचर का इक्विपमेंट है. इट इज अ साइंटिफिक एलिमेंट, बट इट इज अवेलेबल इन अ वेरी लेस क्वांटिटी एंड वेरी लेस ह्यूमंस हैव अ नॉलेज ऑफ क्रायोलाइट. रेयर एलिमेंट है, उसका यूजफुलनेस है बट क्वांटिटी एंड नॉलेज लिमिटेड है, राइट. सो वी क्लासिफाई इट एज अ रेयर रिसोर्स. इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम क्लासिफाई कर ही नहीं सकते एज अ रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल, आज से 500 साल पहले कहीं से ब्लैक कलर का ऑयल निकलता था खुद काम करते वक्त, तो लोग उससे दूर भागते थे. ये तो जमीन में कोई काला जादू है, इससे दूर भागो, इससे आग लग सकती है. आज के टाइम पर वी कॉल इट पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल. एंड आज के टाइम पे अगर किसी की जमीन से अगर बाय चांस खोद काम करते वक्त ऐसे ब्लैक लिक्विड निकलता है तो हम उसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, काला सोना. एंड उससे वो जमीन की कीमत 10 टाइम्स बढ़ जाती है. यू कैन बिकम अ मिलियनेयर इन वन डे if such a thing happens on the land which is owned by you. So पेट्रोलियम जब 500 साल पहले निकलता था, at that time it was just the element of nature. But now, because the humans know how to use it, petroleum has become a resource. Correct? In other words, the things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capability to utilize them. They are called resources. So resources में ये 3 चीजें हैं. करेक्ट. सबसे पहली चीज है कि man is dependent on them.
man is dependent on the resources. Second, needs are fulfilled. Third, man has physical and intellectual knowledge of these resources. अब जैसे पेट्रोलियम की बात करें तो मैन इज डिपेंडेंट ऑन पेट्रोलियम. यस. द नीड्स ऑफ ह्यूमंस आर फुलफिल्ड विद पेट्रोलियम. यस. And man has the physical and intellectual knowledge to extract petroleum from the soil? Yes. So, it is a resource. In this way, anything which is used to fulfill the human needs becomes a resource. Now, in the ancient times, man did not know about the minerals buried within the land, so these were not the resources at that time. But today they are extremely useful due to their utility and developed techniques of mining. The natural resources should have both the virtues of utility and the capability to work. The resources are made of interactions of three things: nature, man and culture. तो resources में तीन चीजें हैं. नेचर है, मैन है और मैन का कल्चर है. Now we are coming to uses of resources. I think every one of you knows about this. No need to write this. Okay? Just underline the lines where these things are written. जो भी लाइंस में ये चीजें लिखी हुई है इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में, इन चीजों को अंडरलाइन कर लीजिए. And also underline the last line of the first paragraph. The resources are made of interactions of the three: nature, man and culture. Okay. Now the next topic is the usefulness of resources. Now, resources are useful to us in many ways. We learn about the role gradually at every stage of human life. All activities from agriculture to industries ultimately depend on natural resources. जैसे कि एग्रीकल्चर की बात करें, सपोज मैं अभी एग्रीकल्चर की बात करता हूं, तो एग्रीकल्चर इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लैंड, इट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर, it is dependent on soil, it is dependent on gases of atmosphere. Right? Now, all these things are natural resources. They are obtained naturally. They cannot be procured through humans. In the same way, industries are dependent again on land. They are all land based. They are dependent on water and they are also dependent on certain gases of atmosphere, and they are also dependent on minerals like coal to generate power. So industries are also dependent on the natural resources. We can say that everything is dependent on these resources. Now, there are three kind of uses of resources. First resource is uses of resource. They can be classified into three. First is as food. Resources as food. For example, fruits and vegetables. Secondly, milk, meat, fish, honey,
etc. These are the resources which are used as food. Now, second, they can also be useful as raw material. For example, forest, agro-based products, wool, meat, minerals. These are all used as raw material. Forests are used as a raw material for the paper industry. Agro-based products, just like cotton, they are useful as a raw material for textile industry. Wool is used for woolen industry. Meat of certain animals, जैसे कि fish में से cod liver oil का मिलना. And minerals, just like petroleum, diesel, these are also useful as raw material for certain vehicles and industries which generate power. Third is as energy resource. So resources which are used as energy. We can classify it as coal, petroleum, natural gas, and also we can classify it as solar, wind, and many other forms of energy. So these are all natural resources which can be used as energy, right? आप अपने टेक्स्ट बुक में या तो ये चीजें जो है ये कहीं पे ऊपर नीचे लिख लीजिए. टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी आप ऊपर नीचे इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप नोटबुक में भी लिख सकते हो, राइट? Now we are coming to types of resources. Now the types of resources, it is already given in the form of a table, so we don't need to write it down. But this is a very important topic, students. Mark it as important. ये types of resources है, इसको important mark कीजिए. सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स. तो रिसोर्सेज को तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं.
फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, सेकंड है अकॉर्डिंग टू रीअवेलेबिलिटी मतलब रिन्यूएबिलिटी, एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। अब सबसे पहले ओनरशिप के हिसाब से देखिए कितने टाइप के रिसोर्सेज है। ओनरशिप के हिसाब से 3 तरह के रिसोर्सेज है। सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, यानी जो इंडिविजुअल या फैमिली का हो, जैसे आपके घर, आपकी जमीन, ये आपकी अपनी है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। लैंड इज एन इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है, इफ इट बिलोंग्स टू यू। दूसरा है नेशनल रिसोर्स, जैसे कि आर्मी और इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स है ये नेशनल रिसोर्स है, इंडिया के रिसोर्सेस है। सपोज आप नेशनल हाईवे पे ड्राइव करते हो तो वो नेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनली आप ट्रेड करते हो तो आपको इंडिया के कस्टम यूनियन से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो नेशनल रिसोर्स है। इंडियन आर्मी हमें गार्ड करती है, वो पूरे इंडिया के लिए रिसोर्स है, राइट, इट बिलोंग्स टू द नेशन। थर्ड इज ग्लोबल रिसोर्स। अब ग्लोबल रिसोर्स क्या होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको सारे नेशंस एक साथ ओन करते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट। एनवायरमेंट किसी एक नेशन की जागीर नहीं है। आज अगर चाइना है या दिल्ली है, इनमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, चाइना के बीजिंग में और इंडिया के दिल्ली में, तो सारे कंट्रीज क्यों बोलते हैं कंट्रोल करो? क्योंकि जब इन 2 सिटीज में पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो दैट मीन्स एंटायर एनवायरमेंट इज स्प्रेड विथ पॉल्यूशन। इट अफेक्ट्स द अदर कंट्रीज ऑल्सो। इट अफेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग नॉट ओनली इन इंडिया एंड चाइना बट अराउंड द वर्ल्ड। सो दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व दैट। तो ये चीज आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, एनवायरमेंट किसी की पर्सनल जागीरदारी नहीं है, लैंड की तरह नहीं है। इन द सेम वे सी वाटर, सी वाटर में अलग अलग कंट्रीज के जहाज चलते हैं ओशियंस में, तो ओशियन किसी एक कंट्री के अंदर नहीं आते। ओशियंस आर अ ग्लोबल रिसोर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। दीज 3, ये जो है, ये जो 3 चीजें दी हुई है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है। रिसोर्स इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। Now on the next page, we are given resources on the basis of distribution area. ठीक है, ये distribution area के अकॉर्डिंग है। So here we have according to distribution area, सबसे पहला है universal resource. The word universal means what? Spread everywhere. Universal मतलब हर जगह मिलने वाले रिसोर्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सनलाइट। सनलाइट इज अवेलेबल एवरीवेयर। कोई जगह पे कम क्वांटिटी में, कोई जगह पे ज्यादा क्वांटिटी में, बट इट इज अवेलेबल इन एबुंडेंस। सेकेंड इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये यूजफुल गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज अवेलेबल एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दैट इज व्हाई इट सपोर्ट्स ह्यूमन लाइफ। सेकेंड इज जनरली अवेलेबल रिसोर्सेस। जनरली अवेलेबल रिसोर्सेस मतलब जो इजीली अवेलेबल है, लेकिन हर जगह पर अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ जगहों पर इजीली अवेलेबल है। जैसे कि लैंड, पेस्च्योर्स। पेस्च्योर मतलब ग्रास वाली लैंड, जिसपे एनिमल्स को चारा खिला सकते हैं, ग्रास लैंड, ठीक है, इसको पेस्च्योर कहते हैं। गेटे बकरे जिसपे घास खा सके। थर्ड है वाटर। अब वाटर भी वैसे इजीली अवेलेबल है, लेकिन कुछ एरियाज है हमारे वर्ल्ड की जहां पे वाटर की एक्सट्रीम शॉर्टेज है, एक्सट्रीम स्कैरसिटी है। सॉइल, सॉइल भी, फर्टाइल सॉइल जो है वो सब जगह नहीं है, लेकिन जनरली हर एक जगह पे सॉइल तो है। थर्ड इज रेयर रिसोर्सेस। रेयर मतलब जो बहुत ही कम जगहों पे मिलते हैं।
लिमिटेड प्लेसेस पे, जैसे कोल, पेट्रोलियम। इंडिया में देखने जाए तो पेट्रोलियम इज अवेलेबल इन अंकलेश्वर, गुजरात, बॉम्बे हाई नियर द गल्फ ऑफ खंबात। तो ये एरियाज है जहां पे पेट्रोलियम अवेलेबल है। उसके अलावा कोल इज ऑल्सो अवेलेबल इन सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया, जैसे छत्तीसगढ़ बेसिन, वेस्ट बंगाल, वहां पर भी कोल के माइंस है, बट इट इज अवेलेबल इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। एंड लास्ट इज सॉलिटरी रिसोर्सेस। इसका एग्जांपल मैंने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में दिया, क्रायोलाइट। ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ग्रीनलैंड में मिलता है स्टूडेंट्स, क्रायोलाइट। इट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट एलिमेंट्स, वन ऑफ द रेयरेस्ट एलिमेंट्स, क्रायोलाइट। ये ग्रीनलैंड में मिलता है। ग्रीनलैंड आपको पता होगा, नॉर्थ ऑफ यूरोप, यूरोप के नॉर्थ में है। Now, resources can be classified according to the third method also, that is according to re-availability, मतलब renewability। इसमें renewable और non renewable resources। renewable resources कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जिनको हम यूज करने के बाद बार बार यूज कर सकते हैं, which can be reused again and again in infinite quantities, infinite। जैसे कि सनलाइट, सनलाइट को आप कितना भी यूज करो वो खत्म नहीं होती। विंड एनर्जी, उसको कितना भी यूज करो कभी खत्म नहीं होती, राइट? बट पेट्रोलियम, कोल, ये सब खत्म होते जाते हैं। जितना यूज करते हैं उतना उनकी क्वांटिटी खत्म होती जाती है। तो दे आर नॉन रिन्यूएबल resources. Some resources reproduce themselves as per their usage. In other words, these are inexhaustible. जैसे solar insolation, wind, birds, animals, bioresources. They are called renewable. Non-renewable resources are those which cannot be reused, or they are used and cannot be reproduced or reformed in near future. इसमें mineral, coal, natural gas, petroleum, etc. are included in this category. Now the next topic is planning and conservation of resources. Now students, we know that during the last 100 years, usage of the resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology, and also due to population explosion. Students, population explosion क्या होता है? Population explosion means population का 2% से ज्यादा increase होना। Increase of more than 2% of the population is called population एक्सप्लोजन। इंडिया में और बहुत सारे कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन ह्यूमन बॉन्ड्स आर एक्सट्रीम। आपको पता है स्टूडेंट्स, ह्यूमंस की प्रॉब्लम क्या है? ह्यूमंस कभी खुश नहीं रहते। कुछ दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आया था। इन दैट वीडियो आई सॉ, इट वॉज ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड। एक हेलीकॉप्टर में एक लड़का बैठ रहा था एंड वो थोड़ा सैड था। ऐसे दिखा रहे हैं मस्त हेलीकॉप्टर में बैठा है, बट ही इज सैड। यू नो व्हाई? उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसका चेहरा थोड़ा सा डिफॉर्म्ड था, चेहरा डिफॉर्म था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन रिच मैन का लड़का हेलीकॉप्टर में घूम रहा है।
जस्ट आफ्टर सम टाइम, जैसे ही वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होता है, नीचे एक स्पोर्ट्स कार आती है। उस स्पोर्ट्स कार में जो लड़का बैठा है वो हेलीकॉप्टर को देख के बोलता है, काश मुझे ये हेलीकॉप्टर मिल जाए। तभी वो स्पोर्ट्स कार चली जाती है। वहां पे एक नॉर्मल कार में बैठा हुआ आदमी सोचता है, काश मुझे स्पोर्ट्स कार मिल जाए। उस गाड़ी के जाने के बाद एक स्कूटर वाला सोचता है कि मुझे कार हो तो कितना अच्छा। फिर एक साइकिल वाला सोचता है, मुझे स्कूटर हो तो कितना अच्छा। एक चलता हुआ आदमी सोचता है, मुझे साइकिल हो तो कितना अच्छा। और एक दोनों पैर से लंगड़ा आदमी जो रेंगते हुए चल रहा है, वो सोचता है, मुझे पैर हो तो कितना अच्छा। वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस वीडियो? बिकॉज इट डायरेक्टली रिलेट्स टू दिस टॉपिक। Human needs are unlimited. Nobody is happy. हेलीकॉप्टर से लेके लंगड़े तक सारे के सारे अनहैप्पी है। So, this is the reason we need to plan our resources. वरना ह्यूमंस रिसोर्सेस को छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई भी खुश नहीं है। एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना ही चाहिए। यू शुड हैव अ यर्निंग फॉर योर प्रोग्रेस। आपको वेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सब एक्यूमुलेट करना ही चाहिए, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए सेटिस्फैक्शन की, कि ठीक है, दैट्स इट। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में वो लिमिट है ही नहीं। दैट इज द रीजन वी नीड टू प्लान सच रिसोर्सेस। Very bad implications will be, implications मतलब results. Very bad results will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter. It is the duty of all of us to conserve resources for the future generations, and the resources should be conserved and used rationally. The word conservation is directly related to the scarcity of resources. If the resources are exploited at the current rate, where they are exploited haphazardly and irrationally, it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle. Students, आप ये लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर रिसोर्सेस को इसी तरह से यूज किया गया, इसी रेट पे यूज किया गया, तो हमारी जो अभी की लाइफस्टाइल है, इसको लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पेट्रोलियम का। बोला जाता है कि पेट्रोलियम इज अ वेरी रेयर रिसोर्स एंड प्रोबेबली जिस तरह से वो यूज होते जा रहा है, इन द नेक्स्ट 25 और 30 इयर्स इट विल बी एग्जॉस्टेड। तो मतलब 25-30 इयर्स के बाद हम ये जो कार्स में घूमते हैं, हम जो व्हीकल्स चलाते हैं, या हम लोग जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं बेस्ड ऑन पेट्रोलियम, ये सब हमें या तो बंद करनी पड़ेगी या तो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज में शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव रिसोर्स। आप बोलोगे कि सर सोलर कार बन चुकी है, आप बोलोगे सर बहुत सारे व्हीकल्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है इंडस्ट्रीज के लिए। करेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि थर्मल पावर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर मतलब कोल, पेट्रोल, डीजल, कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इसको थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इनके जनरेशन के 70% सेंटर्स है। अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड 70% ऑफ द वर्ल्ड, एंड बाकी के 30% में बाकी के सारे फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आते हैं। मतलब आज से 25-30 इयर्स के बाद ये 70% इंडस्ट्रीज को या तो हमें बंद करना पड़ेगा या कन्वर्ट करना पड़ेगा।
आप ही सोचिए क्या कॉस्ट होंगे इनको कन्वर्जन करने के। इतने सारे डैम्स बनाएंगे, वो भी अचानक से। दूसरी चीज, सोलर एनर्जी की बात करते हैं। सोलर कार आपको पता होगा, आज के टाइम पे जो सोलर कार चलती है, आज के टाइम पे, हो सकता है फ्यूचर में फास्ट भी चले, आज के टाइम पे जो सोलर कार्स चलती है वो सिर्फ 4 या 5 घंटे तक चल सकती है, वो भी 12 घंटे के रिचार्ज के बाद। मतलब गाड़ी को 12 घंटे धूप में रखो एंड देन 4 या 5 घंटे तक चल। और उसकी स्पीड कितनी होती है पता है आपको? 45 और 50 किलोमीटर्स पर आवर। अब हमारी जनरेशन जो बाइक्स को 120, 140 की स्पीड पे चलाती है, क्या 40, 50 की स्पीड वाली कार एक्सेप्ट करेगी? वो भी 8 से 30 इयर्स के बाद? नॉट पॉसिबल। सो हमारी जो करंट लाइफस्टाइल है, हम जो एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल में रहते हैं, वो पूरी खत्म हो जाएगी अगर ये रिसोर्सेस खत्म हो गए। पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस, ये सब चीजें सोलर, विंड एनर्जी से रिप्लेस करना बोलने में आसान है, लेकिन 100% रिप्लेस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच रिसर्च, वी डोंट हैव दैट मच टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि जितनी क्वांटिटी में ये चीजें अवेलेबल है उसको बचा बचा के यूज करें। करेक्ट? इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक इट्स रेशनल यूसेज, कंजर्वेशन एंड रीयूसेज। When there is an danger of existence on the life of a tree or human life, the arrangement made for it is called conservation. Students, ये conservation की definition है, इसको underline कीजिए। When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called conservation. अब इसके बाद ये जो points है, इनको भी most important mark कर दीजिए। ये points को important mark करना है। First of all, gather about the availability of utilized, unutilized and probable resources of any region or a country as a unit. Students, यही काम हम करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं? मैप्स बनाते हैं। मैप्स में हम क्या मार्क करते हैं? सर्टेन एरियाज जहां पर रिसोर्सेज मिलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ कंजर्वेशन इज नोइंग द एरियाज वेयर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड मार्किंग देम ऑन द मैप। दैट इज व्हाई मैप वर्क इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल, they should be exploited scientifically and should be used only when necessary. ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। Attempts should be made to develop the resources, the quantity of which can be increased. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हो सके तो अभी से ही ज्यादा से ज्यादा यूज करने चाहिए, ताकि पेट्रोलियम, डीजल और इन सब पे प्रेशर कम पड़े। हो सके उतना सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना चाहिए अभी से। Resources which are cheaper and easily available should not be wasted, but should be used sparingly for future use. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोल तो बहुत चीप है, चूल्हा तो बहुत चीप है, गैस के बिल से तो कोल चीप है, चूल्हा चीप है, तो क्या पूरा खत्म कर देने का? नहीं, उसको भी स्पेरिंगली और साइंटिफिकली यूज करना चाहिए, सिर्फ जरूरत के मुताबिक। रिसोर्सेज विच आर इन लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व्ड एंड फाइंडिंग देयर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज फेवरेबल इन द लॉन्ग टर्म। नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज and should be enforced strictly. Students, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
लॉ के बनने से ज्यादा लॉ का एनफोर्समेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सैडली हमारे कंट्री में यानी इंडिया में कानून बनते तो बहुत ज्यादा है लेकिन फॉलो नहीं होते हैं। पेट्रोलियम के रिलेटेड, एनवायरमेंट के रिलेटेड, हर चीज के रिलेटेड हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है स्टूडेंट्स, लेकिन प्रॉब्लम ये लॉज फॉलो नहीं हो रहे हैं एंड दैट इज गिविंग अ बिग प्रॉब्लम। Citizens should be well acquainted with all facts associated with the rational usage of resources. Public awareness should be cultivated. Save petrol campaign, save water campaign, ये सब चीजें क्यों चलाते हैं एनजीओस? बहुत सारे एनजीओस है जो ये बैनर्स लगाते हैं, क्यों? टू मेक यू अवेयर, टू मेक द सिटीजन्स अवेयर ऑफ कंजर्विंग द रिसोर्सेस। Correct? So that's it for today students. Next time we will continue with soil formation. तो यहाँ पे आप मार्क कर दीजिए पेज नंबर 61 सॉइल फॉर्मेशन से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।